Hello students. Today we are going to discuss chapter 16 water. What are the checklist of this chapter? These are water in different forms, water cycle, uses of water, sources of water, natural distribution of water in India, scarcity of water and methods of conservation. So these points we will discuss in this chapter clearly. First of all, we know that water is the very important on earth. There is no life without water. Okay, so water is very important constitute of the earth for life. So there are many forms of water available, like liquid, gas and solid. Three forms are there. Water is available, and we get water from different sources. So there are various sources of water, like our home also have water sources of overhead tank, underground tank, etc. And the main source of water is rainwater in India for irrigation and all purposes. Let's start this chapter with first topic, water in different forms. So water is in three forms on the earth: ice, which is the solid form; liquid, which is liquid water; and gas, the steam and water vapor. So with this diagram, all the three forms of water is very clear. That is, first form is solid, and we can say solid is ice. Okay, ice cube is in solid form, and this is the second form of water, which is liquid water, and this is gaseous form of water. Okay, so if water goes to 0 degrees centigrade, the water freezes. This form is called solid form, and the changing of liquid form to solid form is called freezing. Okay, this is clear with this diagram. The changing of liquid form to solid is called freezing. And if water melts, if water goes up to the 0 degree centigrade positively, it is called melting process. Okay, if water comes liquid form from the solid form, it calls melting. And in this diagram you can see water goes to change in the steam, okay, in the gaseous form from the liquid form, it is called vaporization. Okay, if water goes in gaseous form from the liquid form, it called vaporization. And the opposite of this also possible, that is the gaseous form to liquid form, it is called condensation. Okay, so there are different points of water. That 0 degree centigrade is freezing point, because on the 0 degree centigrade water starts freezing. 0 to 100 degree centigrade, water becomes liquid. Between 0 degree centigrade to 100 degree centigrade, okay, it is available in the liquid form. And if water goes up to 100 degree centigrade, okay, greater than 100 degree centigrade, water starts to change in gaseous form, okay, with the help of vaporization process. This table is showing the different forms of water on earth. Solid form is available in the form of glaciers, icebergs, snow, hail and frost. These all are the solid forms. Liquid form, rain, dew, these are the liquid form. And gas, fog, steam and water vapor, these three are the gaseous form of water present on the earth. So there are some terms, important terms you should understand. First is glacier. It is the large chunk of ice that moves like a river over the surface of land. Okay, it is called glacier. Glaciers are found moving from high mountain and are sources of fresh water. Okay, so what are the glaciers? Glaciers क्या होते हैं? जो आइस के बिग साइज्ड चंक होते हैं. चंक मीन्स पीसेज, बहुत बड़े साइज के जो पीसेज होता है आइस के, जो कि मूव करते हैं रिवर की तरह मूव करते हैं इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज़ नॉन एज ग्लेशियर. ओके, व्हाट आर आइसबर्ग्स? आइसबर्ग्स भी काफ़ी बिग साइज़ के पीसेज होते हैं आइस के, बट ये क्या होते हैं? ब्रोकन ऑफ अ ग्लेशियर. जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें से जो ब्रेक होने के बाद में जो स्मॉल पीसेज आते हैं, स्मॉलर देन ग्लेशियर, दैट इज़ नोन एज आइसबर्ग. और ये सारे के सारे सीज एंड ओशियंस पे फ्लोट करते रहते हैं. क्लियर? दीज आर नोन एज आइसबर्ग्स. एंड व्हाट आर स्नो? You are very familiar with the snow.
इट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन विच क्रिस्टल ऑफ आइस फॉल ऑन द ग्राउंड। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे पाली, राजस्थान वगैरह पे क्या होता है, जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल जिस तरह से होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म होती है रेनफॉल। क्लियर है? रेनफॉल किस फॉर्म में होता है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, विंटर सीजन होता है ना, जैसे कश्मीर और माउंटेनियस रीजन में, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो रेनफॉल होता है, वो सीधा ही स्नो में एक्सचेंज हो जाता है, स्नो में बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्नोफॉल। और वो जो वाटर होता है उसमें अवेलेबल प्रेसिपिटेशन में, वो होता है स्नो। ओके, वो सारा का सारा वाटर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज़ हेल। व्हाट आर हेल्स? इसको हम ओले भी कहते हैं, हमारे यहाँ जो होता है, जिसको कहते हैं ना ओले पड़ रहे हैं, वो होता है हेल। दीज आर द हार्ड लम्प्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, उनको हम हेल कहते हैं। जो आइस पीसेस टाइप के होते हैं, लम्प्स जो स्काई से आते हैं प्रेसिपिटेशन में, वो होते हैं हेल्स यानी ओले। नेक्स्ट इज़ फ्रॉस्ट। व्हाट इज़ फ्रॉस्ट? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर सॉलिडिफाइज एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन प्लांट्स, ट्रीज, हाउसेज, व्हीकल्स ऑन द सरफेस ऑफ देम। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा विंटर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम पे जो सरफेसेस होते हैं, जैसे कि सारे ट्रीज़ हो गए, ट्रीज़ की लीव्स, हाउसेज, कार्स, व्हीकल्स, उनके जो सरफेसेस होते हैं, उनके सरफेस पे वाटर जो गैशियस फॉर्म में होता है, वो कंडेंस होके अवेलेबल हो जाता है, कंडेंस होके वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाता है, वो कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से फ्रीज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट। ओके, ये बहुत हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए। फ्रॉस्ट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर साइकिल। व्हाट इज़ दिस वाटर साइकिल? लेट्स डिस्कस with this help of diagram. Observe this diagram carefully. There are mountains, river, ocean, sea, clouds, etc. Okay, so in this terrain water cycle is completing. So let's start this water cycle from the water bodies. Okay, these are the water bodies. अब वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, जब सनलाइट आती है, सनरेज़ की सनलाइट, उससे एनर्जी को गेन करके इसका इवेपोरेशन होने लगता है। ओके, जब सनलाइट वाटर बॉडीज़ पे आएंगी तो सनलाइट से हीट होके इनका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होके वाटर गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म। ओके, उसके बाद जो गैशियस फॉर्म वाला वाटर ऊपर जाएगा स्काई में, ड्यू टू द लाइट वेट ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में कूल डाउन होगा, एंड कूल डाउन होने की वजह से वहाँ पे जो स्मोक एंड डस्ट के जो पार्टिकल्स होंगे, उनके ऊपर, उनके सरफेसेस पे उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम गैशियस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, वहाँ पे जाके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेगा। ओके, टाइनी ड्रॉपलेट्स मीन्स बहुत ही छोटी छोटी साइज़ की वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे बना लेगा, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द विंड फ्लो, विंड के फ्लो की वजह से फ्लोट करते रहेंगे। ओके, फ्लोट करते रहेंगे, उसको हम कहते हैं क्लाउड। इस तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वो क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन यहाँ से कंटिन्यू रहेगा और वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आके कंडेंसेशन के थ्रू बनना कंटिन्यू रहेंगे, वो बनते रहेंगे। फिर क्या होगा, जो क्लाउड है, क्लाउड की एक कैपेसिटी होती है। ओके, विंड जो एयर है यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर, एयर जो प्रेजेंट है, वो उसकी कैपेसिटी होती है कि वहाँ की एयर को 100% जो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उससे ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकता इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। जैसे ही उससे ज़्यादा वहाँ की ह्यूमिडिटी हो जाती है, ओके, ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर प्रेजेंट इन द एयर, वो वाटर जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा जब वो गैदर हो जाएगा, तो उसके बाद वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा और वाटर वहाँ से फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन। ओके, वहाँ से फिर रेनफॉल स्टार्ट होगा। अब रेनफॉल जो है ग्राउंड पे आएगा, लैंड पे फॉल डाउन होगा। यहाँ पे लैंड पे रेनफॉल आ रहा है, फिर लैंड पे जब रेनफॉल आएगा तो वो रेनफॉल वाटर जो है यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो रिवर्स फॉर्म करेगा। ओके, जब वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा तो उसके बाद रिवर का फॉर्मेशन होगा और रिवर वाला वाटर आगे जाके वापस एट द लास्ट सीज़ में मिल जाएगा, सीज़ में और ओशंस में जाके मर्ज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रीज़, जो ग्रीनरी है, ट्री प्लांट वगैरह क्या करते हैं,
उनकी लीव्स भी इवेपोट्रांसपिरेशन करती है, दैट इज़ उनकी लीव्स से वाटर इवेपोरेट होता है। ओके, वो भी वाटर इवेपोरेट होके यहाँ पे क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर, वो वाटर क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और ये यहाँ से वाटर बॉडीज से भी जो है वाटर का क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो इन सब से मिला के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, देन रेनफॉल होता है और रेनफॉल होने के बाद में वाटर अगेन वाटर बॉडीज़ में जाके मर्ज हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट वाटर साइकिल हुआ। इसमें वाटर ना तो वेस्ट होता है ना ही जनरेट होता है, तो कंप्लीट एक वाटर साइकिल है। दैट मीन्स जो वाटर अर्थ पे अवेलेबल है बस वो रोटेट करता है, वो एक साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। नया वाटर नहीं बनता और ना ही वाटर वेस्ट होता है। Our next topic is uses of water. Where we use the water? We use water for drinking purposes, for washing and for transportation. In these diagrams it is showing. So let's discuss first for body functions. We use water for body functions like digestion, okay, digestion, breathing and all the functions need water, and our blood also in the liquid form because of water. So without water the life is not possible. So in all the functions of body, all the functions of cells, tissues, water is required, both in plants and animals. And plants uses water for the photosynthesis process, for making food. Okay, so plants also use water and animals are also using the water. Next is domestic use. We need water for drinking, cleaning, cooking, etc. These all functions we do in our home for domestic use. And next is agricultural use. You know that all the crops need water for growing, so this is the agricultural use of water. In India, rainfall is the main source for farmers for agricultural use. Okay, so this is the uses of water. Water is also useful in the industries and transportation and as a habitat. So what is the use of water in industries? In many parts of the world we use water in industries like for washing, for hydroelectric power, and many uses like manufacturing. So these are the industrial use. What are the use in transportation? We use transportation like huge ships. These runs in the ocean, so these are the transportation uses. And as a habitat, like all the aquatic plants and animals live in water, in ocean and in lakes and in ponds, so these are the habitats of aquatic life. Aquatic life includes all the living bodies, living organisms living inside water. These are fishes, animals and microorganisms and all. Now what are the sources of water? There are like multiple sources: surface water and underground water. Okay, the water which is available on the surface is called surface water, and the water which is available below the surface, that is known as underground water. Okay, and there is one more thing, runoff water. What is runoff water? Runoff water is actually the form of surface water. Okay, runoff water is present on the surface. When the rainfall happens, during rainfall the water flows on the surface of earth, that is known as runoff water. It may be in drainages on or the surface of roads, etc. So this is known as runoff water, and it is the form of surface water. Okay, and the runoff water flows on the surface of earth, we know. After the flow and with the help of slope, water goes in the low lying areas and gets collected there and form ponds, lakes, etc. These are known as also the surface water sources, because this water is available on the surface of earth, and this is known as surface water. Okay, and ocean and seas are also the form of surface water. Point it. Next is underground water. What are the underground water? The water present below the earth's surface, we know that it is available in the form of aquifer. Okay, why the water goes below the ground? It goes by the leaking or seepage of water due to the gravity. Okay, gravity pulls the water down, and the voids between the soil particles allows this, and with the help of gravity water goes down. It is called the infiltration of water.
Okay, what is infiltration? The leaking of water up to down in the ground is known as infiltration, and it makes a water table. When the infiltration done, the level of water makes inside the ground level. This level of water is known as water table. In this diagram you can see here, this water is available on the earth surface, hence it is surface water, and this is the water present under the ground, hence it is known as underground water. Okay, so this is the layer of water inside ground, equal level. This level of water is known as water table. Okay, and it is available inside the ground at a certain depth. If we want this water, we need to hold the ground, to make a hole in ground, and then we can take this water out with the help of pump. Like this is well, tube well, and well gets this water out. So this is the water table, and this water is known as aquifer. Okay, the water we are getting from the tube well and tube well, this is the water from aquifer. This water is available in the ground in between the layers of hard rock. Okay, because there is two layers of hard rock, above the aquifer and below the aquifer. So this is known as aquifer. Natural distribution of water in India. The natural distribution of water is very unequal in India, and it is very bad thing for India. Okay, in this diagram you can see the natural distribution of water in India. There are various colors in this map. The meaning of these colors are: the yellow color, it is showing the minimum rainfall which is available in Rajasthan. Okay, so the western part of Rajasthan gets the minimum water, and it leads to make the drought conditions. वहाँ पे जब समर टाइम आता है तो समर टाइम में ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. ओके, एंड दिस color, it is showing 20 to 40 centimeter rainfall. It is available in also Rajasthan. Again it is in Rajasthan. इसका ये पार्ट इससे ज़्यादा बट फिर भी काफ़ी कम रेनफॉल होता है, 20 to 40 सेंटीमीटर. देन ग्रीन कलर, इट इज़ शोइंग 40 to 50 सेंटीमीटर. ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन अरावली माउंटेन रेंजेस के पास वाला रीजन है. यहाँ पे रेनफॉल ओके इससे तो ज़्यादा है बट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है. It is also minimum, lesser than the required. Then this pink region, light pink region, it is showing 60 to 100 सेंटीमीटर. ये वाला जो रीजन है लाइट पिंक रीजन, राजस्थान में ये वाला रीजन आता है अरावली माउंटेन रेंजेस के राइट साइड में. ओके, तो अरावली माउंटेन रेंजेस के राइट साइड में जो रेनफॉल है राजस्थान का वो ओके है, और राजस्थान और जो पूरे इंडिया में ये रीजन है वो यहाँ तक आता है. ये वाला सारा रीजन इक्वल रेनफॉल यहाँ पे होता है. ओके, एंड दिस डार्क पिंक कलर, इट इज़ शोइंग 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल. इट इज़ एनुअल रेनफॉल, एनुअल एवरेज रेनफॉल. तो ये वाला जो सारा रीज़न है यहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है, ये रेनफॉल अच्छा शो कर रहा है पिंक. ओके, एंड ऑरेंज, इट इज़ 150 to 250. ये ऑरेंज वाला रेनफॉल यहाँ पे इस रीजन में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वाला रीजन और ये सारा रीजन कोस्टल एरियाज़, ये पूरा कोस्टल एरिया ऑरेंज, एंड ये रीजन. तो ये ऑरेंज वाला रेनफॉल जो है ज़्यादा होता है. ओके, यहाँ पे 150 to 250 सेंटीमीटर एवरेज से ज़्यादा होता है. एंड ब्लू, इट इज़ मैक्सिमम रेनफॉल, ये बहुत ही ज़्यादा होता है. ब्लू तो बहुत ही डेंजरस होता है, कई बार यहाँ पे फ्लड वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है. ओके, तो आपने देखा इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का. कहीं पे तो ड्रॉट होता है और कहीं पे फ्लड्स भी हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, ये सारी चीज़ें डेंजरस होती है. फ्लड डेंजरस होता है फ्लड वाले रीजन के लिए, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स वगैरह को डेवलप करना पड़ता है. वहाँ पे पूरा वाटर मैनेजमेंट उस तरह से बनाना होता है हमें, ताकि उससे हम कोप कर सकें. तो जिन जगहों पे वाटर का ड्रॉट वाली कंडीशन अवेलेबल होती है, ड्रॉट वाला कंडीशन बन सकता है, जैसे कि राजस्थान, तो यहाँ पे क्या होता है कई सारे डैम्स को क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जब रेनफॉल हो तो उसके वाटर को हम
गैदर करके रख सकें, उसके वाटर को स्टोर करके रख सकें, ताकि जब ड्रॉट की कंडीशन बने तो उस वाटर को यूज़ कर सकें। काफ़ी बिग साइज रिजर्वायर भी बनाने होते हैं, ओके। और इन रीजन में जहाँ पे फ्लड की कंडीशन होती तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी रिवर्स एंड फ्लोज को कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि वो जाके सीधा बे ऑफ बंगाल में मिल जाए, या फिर उस तरह से जो भी है टेरेन वहाँ पे बनाना होता है, ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना होता है। एंड फॉर एग्जांपल भाखड़ा नांगल डैम, ये बनाया हुआ है सतलेज रिवर के ऊपर, जो कि पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स को वाटर की सप्लाई करता है, ओके। एंड रिवर्स के पास भी जैसे राजस्थान में और कई जगहों पे रिवर्स के वॉल्स को आर्टिफिशियली बनाया गया है। उससे क्या होता है कि रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे गेट्स बना देते हैं और रिजर्वायर भी बना देते हैं। जब भी रिजर्वायर यानी कि डैम फुल हो जाता है तो उसके बाद गेट्स को ओपन करते हैं, फिर वाटर आगे रिवर में चला जाता है, और जब तक वाटर का स्टोरेज फुल ना हो जाए उसके गेट्स को ओपन नहीं करते हैं। वो वाटर बाद में फिर ड्रॉट कंडीशन बनने के टाइम पे काम आता है, तो वो होता है रिजर्वायर या डैम। अभी हमने डिस्कस किया रेनफॉल को, जो कि सेंटीमीटर्स में इसकी रीडिंग शो कर रहा है। तो ये सारी रीडिंग हमें पता कैसे चलती है? ये हमें पता चलता है रेन गेज से। तो रेन गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेनफॉल को मेज़र कर सकता है। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिलेंड्रिकल शेप का एक डिवाइस होता है, और उसके साथ में एक स्केल अटैच रहती है, जो स्केल क्या शो करती है, डायरेक्टली रीडिंग को शो कर देती है, सेंटीमीटर में या एमएम में या इंच में, जो भी सूटेबल होती है उसमें। तो जो रेनफॉल है इंडिया में वो डिपेंड किस पे करता है? वो पूरा डिपेंड करता है द मूवमेंट ऑफ विंड पे। जो मूवमेंट ऑफ विंड होता है इंडिया में, डायरेक्शन उसकी जो है, स्पीड उसकी जो है, वो सारा रेनफॉल को अफेक्ट करता है। इन दिस मैप दिस पार्ट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज़ साउथ, दिस डायरेक्शन इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो विंटर सीजन में विंड की डायरेक्शन होती है यहाँ से, इस साइड से विंड आती है इस डायरेक्शन से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ विंड का फ्लो होता है इन विंटर सीजन। और समर सीजन में इसका फ्लो अपोजिट हो जाता है। वो क्या होता है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ विंड का फ्लो हो जाता है। ये होता है समर सीजन में। तो 2 टाइप्स की विंड इंडिया में होती है मेनली, और ये अफेक्ट करती है रेनफॉल को। मानसून विंड्स वगैरह यही लेके आती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। दिस टर्म मीन्स वाटर की कमी। ऐसा क्यों होता है? वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस अप टू 71%। जो अर्थ का पूरा सरफेस है उसमें से 71% सरफेस पे वाटर अवेलेबल। वो पूरा सरफेस 71% वाटर से कवर्ड है। इतना सारा वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, फिर भी हम कहते हैं कि वाटर बहुत कम है अर्थ पे, उसको कंजर्व करना चाहिए, ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं हम? बिकॉज दैट वाटर इज़ नॉट वर्थी फॉर अस। द टोटल होल वाटर इज़ नॉट वर्थी फॉर अस। वो पूरा के पूरा वाटर यूज़फुल नहीं होता। उस वाटर में से ओनली 2.5% जो वाटर अवेलेबल है 71% में से, उसका 2.5% ही फ्रेश वाटर है, ओके। वो ओनली 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और वो पूरा के पूरा वाटर भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बिकॉज उसमें से 2% वाटर वो तो अवेलेबल है फ्रोज़न फॉर्म में, जो कि स्नोज एंड ग्लेशियर्स में, ओके, और पोलर रीजन्स में जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में अवेलेबल है। वहाँ पे तो वाटर को हम यूज़ कर नहीं सकते वो वाला वाटर यहाँ पे लाके, तो इसलिए बहुत सारा वाटर फ्रोज़न फॉर्म में अवेलेबल है। तो उसमें से 2.5%, उस फ्रेश वाटर का 2.5% ही सारा के उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसमें से 0.7% से लेके 0.8% तक वो वाटर जो है ग्राउंड वाटर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड 0.0%, 0.01% वो वाटर जो है सरफेस वाटर की तरह अवेलेबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो सारा है लेक्स में, पॉन्ड्स में, वो वाला वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो इतना सारा 71% वाटर होने के बाद में भी वो सारा यूज़फुल नहीं, बिकॉज वो फ्रेश वाटर नहीं है। वो ओशियंस में या सीज़ में अवेलेबल है, जो कि सॉल्टी वाटर है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर्पज़ में या किसी भी पर्पज़ के लिए। तो वो वाटर हमारे काम का नहीं है। 2.5% वाटर जो फ्रेश वाटर है, उसमें से भी बहुत कम पानी जो है 0.7 एंड 0.8% वो ही हमारे काम का है। एंड 0.01% सरफेस वाटर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है यूज़फुल वाटर बहुत ही कम अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए और उसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ये जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसको भी हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ओके। उसको पोर्टेबल बनाने के लिए
कुछ ट्रीटमेंट करने होते हैं। पोर्टेबल मीन्स द वाटर विच इज़ यूज़फुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, दैट इज़ नॉन एज पोर्टेबल। ओके, इस टर्म का मतलब होता है ऐसा वाटर जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सके, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके, इसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। तो फ्रेश वाटर को पोर्टेबल बनाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करना होता है ट्रीटमेंट प्लांट में, तो उसकी भी कॉस्ट आती है। ओके, वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव थिंग्स होती है। इंडस्ट्रीज़, शॉप्स, ऑफिसेज वगैरह में वाटर की डिमांड होती है, तो वहाँ पे वाटर को सप्लाई करती है म्यूनसिपैलिटीज़ या जो भी है वहाँ पे सिस्टम, वो उनको ट्रीट करके वहाँ पे सप्लाई करता है और वाटर की डिमांड को कंप्लीट करता है। अब जो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत वाटर की शॉर्टेज हमें फेस करनी होती है। सपोज़ अभी हम जहाँ पे रहते हैं पाली राजस्थान में, यहाँ पे अभी 1 डेज़ के अल्टरनेट पे वाटर की सप्लाई होती है। ओके, इट इज़ नॉट वेरी लेस, बट जब समर सीज़न आता है वाटर की सप्लाई और डिमांड हमें और ज़्यादा चाहिए होती है उस टाइम पे हमें 2 to 3 डेज़ का वेटिंग करना पड़ सकता है और करना होता है हर टाइम पे। ओके, तो वो सारा एक इश्यू होता है और वाटर के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और अवेलेबल वाटर कम होता है। और वो सारा डिपेंड करता है रेनफॉल पे। अगर फिर भी रेनफॉल नहीं होता है तो फिर ड्रॉट वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है और वो बहुत ही डेंजरस होती है। उसमें बहुत सारे प्लांट्स जो कि सरफेस वाटर को यूज़ करते हैं एंड अंडरग्राउंड वाटर को जो डीप रूट्स होती है वो यूज़ करती है, तो उन पर अफेक्ट पड़ता है, वो उनकी डेथ हो सकती है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे प्लांट्स। और फिर जो फार्मर्स को वाटर चाहिए होता है वो इरिगेशन के लिए, वो सारा वाटर भी रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अगर रेनफॉल होता है तो ओके, अगर नहीं होता है तो उनको वाटर सप्लाई करना होता है। और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी कम पड़ रहा है तो फार्मर्स को भी वाटर देना होता है। ये सारा हमें मैनेज करना होता है। तो इसी रीज़न से हमें वाटर को काफ़ी केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम टू नो सम फैक्ट्स। एक कॉमन टॉयलेट का फ्लश 8 लीटर वाटर्स को यूज़ करता है सिंगल टाइम में। एंड ड्रिपिंग टैप कैन बी वेस्ट 90 लीटर्स ऑफ वाटर ए वीक। जो टैप होता है जो ड्रिप करता है, टपकता हुआ नल, वो 90 लीटर्स ऑफ वाटर एक वीक में वेस्ट कर लेता है। तो इन चीज़ों को बहुत ही जल्द रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि वाटर का वेस्टेज हम रोक सकें। कॉजेज़ ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, यानी वाटर स्कैरिसिटी होने के क्या क्या रीज़न्स हैं, ऐसे क्या रीज़न है जिनकी वजह से वाटर की कमी हो जाती है। तो वो सारे हैं। एक तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, वी नो दैट। तो पॉपुलेशन जब इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, उनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस वजह से वाटर की स्कैरिसिटी होती है। वाटर को इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट एंड वेरियस पर्पसेस, तो उसके लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वाटर की स्कैरिसिटी होती है, इन सब रीज़न से होती है। और मेन है इर्रेगुलर एंड लेस रेनफॉल। जब रेनफॉल इर्रेगुलर होता है, जब सीज़न में प्रॉपर नहीं हो पाता और रिक्वायरमेंट से कम होता है, तो भी वाटर की स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे रीज़न हैं इंडिया में वाटर स्कैरिसिटी के। और हमारे इग्नोरेंस की वजह से हम बहुत सारा वाटर वेस्ट कर देते हैं, उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करते। ओके, तो वो भी सारे रीज़न होते हैं वाटर स्कैरिसिटी के। और जो फार्मर्स हैं उनको वाटर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और जब रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो पाता तो फार्मर्स को ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होना पड़ता है। और ग्राउंड वाटर को जब बहुत ज़्यादा वो यूज़ करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे, तो ग्राउंड में भी वाटर की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उस टाइम पे वाटर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये सारे कॉजेज़ होते हैं वाटर स्कैरिसिटी के। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर स्कैरिसिटी मीन्स वाटर स्कैरिसिटी से क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑन ह्यूमंस, तो वाटर स्कैरिसिटी होने की वजह से ह्यूमंस के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम होती है अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। उनको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता। ओके, इसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है और हाइजीनिक कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस को। उनको वॉशिंग के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होता, नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो सारी प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस के लिए। और प्लांट्स के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, प्लांट्स नीड वाटर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो जब प्लांट्स के लिए वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और फाइनली उनकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। ऑन लैंड, लैंड पे क्या इफेक्ट होता है, जब लैंड में वाटर की स्कैरिसिटी हो जाएगी, वाटर कम हो जाएगा ग्राउंड वाटर, तब क्या होगा, जो लैंड है वो बैरेन हो जाता है। बैरेन BARREN सॉरी। तो बैरेन मीन्स ऐसा लैंड जिस पे क्रॉप
फर्टाइल जिस पे क्रॉप नहीं हो सकती, जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं बैरन। तो लैंड बैरन बन जाते हैं और उसमें फिर क्रॉप पॉसिबल नहीं होती। तो फिर अगेन और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब क्रॉप ही नहीं होगी तो फिर खाने के लिए भी प्रॉब्लम होगी, फूड अवेलेबल नहीं होगा ह्यूमंस के लिए। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है जो कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वाटर को कंजर्व कैसे करना है, उसको कंजर्व करना हमें चाहिए। कैसे कर सकते हैं? एक तो सबसे ज़्यादा हमें इग्नोर नहीं करना है वाटर के यूजेस को, बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको यूज़ करना है। अगर कोई लीकिंग टैप है या कुछ ड्रिपिंग टैप है जो ख़राब है, टपक रहा है ऐसा कोई नल, तो उसको सबसे पहले रिपेयर कर लेना चाहिए। और हम जब ब्रश कर रहे होते हैं, शेव कर रहे होते हैं, तो इस तरह के टाइम के यूज़ पे और कार वगैरह को वॉश नहीं करना चाहिए और नल को ऐसे टैप को खुला नहीं रख देना चाहिए। जिस टाइम पे हम शेव या ब्रश कर रहे होते हैं तो उसको बीच में बंद कर देना चाहिए और जब यूज़ हो तभी उसको ऑन करना चाहिए। और कार को वॉश करने की जगह पे उसको हम एक वेट क्लॉथ से भी साफ़ कर सकते हैं, क्लीनिंग उसकी कर सकते हैं। तो इस तरह से वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। एंड रेन हार्वेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब रेनफॉल होता है तो उसके वाटर को हम किसी भी तरह से कहीं पे स्टोर कर लें और बाद में जब रेनफॉल नहीं होगा और वाटर की स्कैरिसिटी डेवलप होना स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे हम इस रेनफॉल वाले स्टोर्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा है, इस बिल्डिंग की रूफ़ के सरफेस पे एक टैंक बना दिया है, ओपन टैंक। यहाँ पे क्या होगा, जब रेनफॉल होगा तो उसका वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर वो वाटर इन पाइपलाइंस के थ्रू, यहाँ पे पाइपलाइन लगा रखी है, वो इन पाइपलाइंस के थ्रू आएगा नीचे और उसको एक टैंक बना के, ग्राउंड टैंक बना के उसको स्टोर कर सकते हैं। और ये सारे स्टोर्ड वाटर टैंक बाद में हम यूज़ कर लेंगे एट द टाइम ऑफ वाटर स्कैरिसिटी। तो इससे क्या हुआ, जो वाटर है रेनफॉल वाला वो वेस्ट नहीं हुआ और उसको हमने सेव करके रख लिया फॉर द फ्यूचर यूज़। यह होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इरिगेशन में भी वाटर को बहुत यूज़ किया जाता है। तो उस टाइम पे हम ऐसा इरिगेशन मेथड यूज़ करें जिसमें वाटर वेस्ट नहीं हो, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ओके, ड्रिप इरिगेशन इसमें क्या होता है, इन दिस डायग्राम इट इज़ क्लियर। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट की रूट के पास में पाइपलाइन लगा देते हैं और उस पाइपलाइन में वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे दिया जाता है प्लांट को। तो इसमें क्या होता है, जो रूट्स हैं उनको डायरेक्ट वाटर मिलता है, बाकी की सॉइल को वाटर नहीं मिलता। तो इससे प्लांट को जितना वाटर रिक्वायर्ड है डायरेक्टली उनको रूट्स में दे दिया जाता है और वाटर को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। ना तो इसमें वाटर का इवेपोरेशन होता है, ओके, और ना ही जहाँ पे जिस सॉइल में वाटर नहीं है, प्लांट नहीं है, उसको वाटर देना नहीं पड़ता। तो इसमें वाटर की बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। एंड अगेन हमें वाटर को रिसाइकल करना चाहिए। ओके, जैसे इंडस्ट्रीज़ में वाटर को यूज़ किया या हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया, तो उसके बाद में जो वाटर है उसको रिसाइकल करके अगेन यूज़ करना चाहिए। जैसे हाउस का जो वाटर है वो बाहर निकला, सीवरेज वाला है, जो भी वाटर है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया उसका, देन उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़, वॉशिंग पर्पजेज़, इन सब के लिए या फिर गार्डनिंग के लिए। तो वाटर को वेस्ट करके फेंक नहीं देना चाहिए, उसको किसी ना किसी पर्पज़ में यूज़ करना चाहिए रिसाइकल करके। ओके, तो ये पूरा चैप्टर था हमारा वाटर। थैंक यू।